Hello students, I hope you all are good. As you know, we are in the continuation of the chapter number first, that is of the second unit, right? So second unit is kinematics and we will do the chapter number first of that unit. The chapter name is motion in one dimension and this is the second part of this chapter. Okay, let's start our lecture. Yes, so motion in one dimension or motion in straight line. Basically one dimension means straight line, right? So till now we have done the distance. What is distance, what is displacement, what is speed and what is velocity, right? Now we derive the expression for the displacement, right? So what is the formula for actual displacement of a body in case of uniform motion? Please remember, till now we are in the continuation of the uniform motion. Okay, let's start. There is a body starting from origin at initial time, that means t equal to 0. That body covered distance is x naught, right? Then after time t, that means when a body reach at point B at time t, the distance covered by body is x. That means, as you know, in the first lecture we have done, what is the formula of velocity? That is change in displacement divided by change in time. So final position of the body, that is at B position, distance is x, so I have put here x, minus x naught divided by final time, that means t, minus initial time, that means 0, right? So v is equal to x minus x naught divided by t. When you cross multiply, you will get vt, that is equal to x minus x naught. I have equated here the name equation number 1. Now as you know, it is a net displacement, so you can write x minus x naught as a s, right? So it is a notation of the displacement, that is s. So when you put x minus x naught in the equation s, then the equation becomes s equal to vt. So it is the equation for the displacement, right? Okay, now it's very important to study the graph between the position time graph or velocity time graph. So one by one we will discuss these graphs. The first is to study the position time graph. That means how body position, okay, so how the position vary with time, that we study in this graph. Or you can say the question can be asked in another form, that is prove that uniform motion velocity is equal to slope of position time graph. That means how the velocity will change with time, that you will see in this graph, right? So now you will see हमें पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, वेलोसिटी बेसिकली. तो आपको पता चलेगा व्हाट इज स्लोप. बेसिकली स्लोप किसको बोलते हैं, और जब हम स्लोप निकालेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की तो वो हमें वेलोसिटी देगी, राइट? ओके, नाउ दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ एट टाइम t इक्वल टू 0. देर इज सम, आप बोलोगे कि 0 पे 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज एज यू सी द पोजीशन टाइम ग्राफ at time t equal to 0, the body is at some distance. That means मैंने assume कर लिया at t equal to 0, at time equal to 0, that is initial time, the object or body is at a distance of 10 meter. So we start with a position time graph from 10 meter distance, right? So as we increase the time, the distance will also increase, but the position time graph helps us to see the distance at any another time, right? Now you will see, अगर मुझे at 1 second पे निकालना हो कि मेरी बॉडी कहाँ तक पहुंची, then how we will find. Now you will see, as you know, in the uniform motion, the velocity is constant because distance never changing. Equal change in equal interval time, that means velocity कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि हमेशा बॉडी जितने फर्स्ट टाइम में करेगी, फर्स्ट 5 इंटरवल में या फर्स्ट 5 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उतना ही नेक्स्ट 5 मिनट्स में. सो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म मोशन, राइट? नाउ आई एज्यूम in this is just example, okay? So I just assume the velocity is 10 meter per second, right? Or you can say 15 meter per second, that is up to you. So I assume that let body move with constant velocity, that is 15 meter per second, right? Now when
This is the displacement formula as we have derived earlier. X minus x naught, that is equal to Vt. You can say xs, but I will put this final minus initial distance. Now I want to find the displacement or a distance at time equal to 1 second. So I just put here as it is x. हमारा initial distance क्या था, कहाँ से start हो रहा था ग्राफ, 10. I will put 10. Velocity हमने assume की that is 15, so I just put the value 15. Time हमें किस पे value find out करनी है distance की, 1 पे, 1 second पे, तो 1 put किया. So after solving you will get that x is 25 meter. That means at x equal to, yes, so that means at x equal to t equal to 1 second, time equal to 1 second, the displacement is 25. So at any time you will find from this formula, just by assuming velocity will be constant, अब 15 ही लोगे हमेशा, time will change and according to that distance will also change. Initial distance 10 will also same as it is. Okay. So now you will see, this is just example, but as I see this the second form of the question, prove that the uniform velocity slope of the position time graph will give us the velocity, right? So how it will give us the velocity, now we will see. You will see, yes, yes, we are here. So on the y-axis there is position, right? So on y-axis there is position and on x-axis there is time. So as you know the graph starts from here at this point, let it be 10 जैसे हमने पहले वाले ग्राफ में किया. Now you will see जैसे जैसे हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है. तो स्लोप पहले समझते हैं कि होता क्या है. किसी भी ग्राफ का जब हमें स्लोप निकालना होता है दैट इज द चेंज इन वाई एक्सिस. ऊपर वाला न्यूमिनेटर में क्या आता है, चेंज इन वाई एक्सिस, कि कितना चेंज वाई एक्सिस पे हो रहा है. नाउ यू विल सी वाई एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है यहाँ पे पोजीशन. सो चेंज क्या हो रहा है, एक्स प्राइम माइनस एक्स. मैंने मान लिया मेरी फाइनल पोजीशन डिस्टेंस हो गई एक्स प्राइम और मैंने स्टार्ट किया किसी एक्स डिस्टेंस से. दिस इज एक्स प्राइम एंड दिस वन इज एक्स. सो एक्स प्राइम माइनस एक्स. नाउ द डिनोमिनेटर में क्या आएगा, द चेंज इन एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस में क्या लिया है, टाइम. सो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. नाउ यू विल सी स्लोप क्या बन गया, x प्राइम माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू t प्राइम माइनस टी. बट एज यू नो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, राइट? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम. सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन यू कैन से दैट ना वेलोसिटी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द पोजिशन टाइम ग्राफ, राइट? सो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट, not you can say derivation, it's just a step, but you can understand from the graph, right? So slope of position time graph give us the velocity. Now the third one, second topic is, now पहले हमने क्या किया, पोजिशन टाइम ग्राफ स्टडी किया है, अब हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एज यू नो अभी तक हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते आ रहे हैं, राइट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे नहीं गए हैं. तो यूनिफॉर्म मोशन एक चीज है और नॉन यूनिफॉर्म या फिर आप बोल सकते हो एक्सेलरेटेड मोशन, तो वो दोनों एक चीज है, राइट? बट टिल नाउ वी आर इन द कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. टू स्टडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एज यू सी यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में. दैट मीन्स कि जितना पहले 5 मिनट्स में किया नेक्स्ट 5 मिनट्स में भी उतना ही करेगी. तो दैट मीन्स अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, सेम चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी उतनी ही होगी. तो जहां मर्जी चले जाओ, जितना मर्जी टाइम चेंज करो, द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, राइट? सो इन द स्टडी ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ the velocity will be constant, so that's why I draw the line here constant. Time will increase but velocity will never increase, right? So it will be constant. At t the velocity will be v. Similarly at point t prime the velocity will also be t prime. Sorry, it's v. Now you will see कि हम इसको understand कैसे करें. जैसे हमने position time graph समझे एक example से. Now we will see how to understand this velocity time graph from one example. You will see here why velocity is too constant. For example, पहले टाइम 1 सेकेंड पे डिस्टेंस 10 मीटर था, राइट? इनिशियली मैंने अज्यूम कर लिया कि बॉडी मेरी 0 से स्टार्ट हुई है और डिस्टेंस भी मेरा 0 है, राइट? नाउ यू विल सी फॉर एग्जाम्पल एट टाइम 1 सेकेंड तो मेरी डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर. सो 10 माइनस 0 t माइनस 0 दैट मीन्स 1 सेकेंड पे. सो आई वॉन्ट टू फाइंड द वेलोसिटी एट 1 सेकेंड. ठीक है, नाउ यू विल सी 10 माइनस 0 और 1 माइनस 0, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया 1 सेकेंड पे. बट
नाउ यू विल हैव टू सी कि टाइम 2 सेकंड पे वेलोसिटी मेरी सेम आ रही है नहीं, क्योंकि मुझे यही देखना है ना कि वेलोसिटी हर टाइम पे कांस्टेंट रह रही है या नहीं. सो नाउ यू विल सी हियर in next 1 second, that means t equal to 2 second, so t naught equal to 0, distance covered is equal to x equal to 20. So here it's 20. I think it's not visible. Yes, this distance is 20, right? Okay, so this distance is 20. Now you will see at next 1 second time तो हम इक्वल लेंगे, क्योंकि इक्वल इंटरवल देखना है कि अगले 1 मिनट 1 सेकंड में क्या करता है. तो डिस्टेंस भी हम उतना ही चेंज करेंगे, क्योंकि हमने देखा इक्वल डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म मोशन में. तो टी अगर 10 हमने चेंज किया, पहले 10 किया, नेक्स्ट 10 और हो गया चेंज, एंड टाइम 1 सेकंड के ड्यूरेशन पे. नाउ यू विल सी वेलोसिटी विल आल्सो बी 10. 20 minus 0, 2 minus 0, then 2 will cancel 20, you will get 20. That means at every second you will get velocity constant, that is 10 meter per second. अगर आपको 2 सेकंड पे नेक्स्ट वाले सेकंड पे निकालनी हो 3 सेकंड पे, तो डिस्टेंस 30 हो जाएगा. 30 minus 30/3, that is also 10. So you will see in case of uniform motion the velocity will be constant, right? So graph is like this. So please remember, क्योंकि ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन में आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो गए कि ये क्या चेंज हो रहा है. तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, राइट? ओके, so now we can write the velocity is equal to change in displacement upon change in time in case of uniform motion, and velocity will be constant in case of uniform motion, right? But as you see from the first graph, position time graph, हमने क्या निकाला था? स्लोप ग्राफ से, राइट? तो वो स्लोप किसके इक्वल आई थी? वेलोसिटी के इक्वल. नाउ व्हाट यू फाइंड फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? दैट इज द एरिया, राइट? सो वी कैन फाइंड द एरिया, बट इफ यू want to find the area of uniform velocity, that is टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एरिया निकाल सकते हैं. प्लीज लिसन, एरिया में मल्टीप्लाइकेशन होता है और स्लोप में डिवाइड, राइट? सो जब हमने डिवाइड किया था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को, हमारे पास आई थी वेलोसिटी, दैट विल गिव अस द स्लोप, बट इट इज रिटन इज बट, राइट? इफ यू नॉट विजिबल हियर, it is but, and here it's g, it's g, it's a graph, right? So as you see, if you want to find the area of velocity time graph, the area will be velocity into time. So velocity and time क्या होगा? t prime minus t final minus initial. तो जो भी हमें ग्राफ का एरिया कहाँ शो करे? see here from the graph, yes, a b a prime b prime, so that is the area of velocity diagraph. मैंने सिर्फ इतने पोर्शन का लिया, राइट? आप किसी भी पोर्शन का ले लो, आपके पास यही आने वाला है, बस टाइम थोड़ा चेंज हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन, राइट? बट एरिया विल बी कांस्टेंट. तो एरिया हमें कैसे आएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करके, राइट? तो दैट विल गिव अस द एरिया. बट एज यू नो कि वेलोसिटी इनटू टाइम तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है. दैट मीन्स एरिया ऑफ the area of the velocity time graph give us the displacement. जैसे in the position time graph the slope of the graph will give us the velocity, similarly in case of velocity time graph it will give us the area, right? That is the displacement. Now this is too not for here. The area, when we will get that, when we multiply two physical quantity, multiply, please remember it's multiply, right? Slope when we will get when we divide two physical quantity, right? So that means multiply, then we get the area, when we divide then we will get the slope, right? Okay, next thing is, ये वही लिखा हुआ है कि इस ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, राइट? जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं. सो प्लीज लिसन नाउ, important thing, till now we are in the uniform motion. Please remember, till now we are in the uniform motion. Now we will start the accelerated motion, right? Now we will start the accelerated motion. Accelerated means कि velocity change होगी with time, constant नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं होगा कि हर एक इंटरवल पे सेम डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी, राइट? सो एक्सेलरेटेड मोशन को हम 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. प्लीज इंपॉर्टेंट है ये, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी किसी व्हीकल की चेंज होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन इक्वली चेंज होगी, राइट?
प्लीज, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। जब आप यूनिफॉर्म मोशन से एकदम एक्सलेटेड में आओगे, आप बोलोगे वहां पे आपने इक्वल बोला था, यहाँ पे भी बोल रहे हो, पर वहां मैंने बोला था कि डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ मैं बोल रही हूँ वेलोसिटी चेंज होगी, वहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी यूनिफॉर्म मोशन में। एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी विल चेंज बट इट विल चेंज इक्वली। दैट मीन्स अगर फर्स्ट 5 मिनट्स में वेलोसिटी 30 to 35 हुई है, दैट मीन्स 5 का चेंज हुआ है। नेक्स्ट में 35 to 40, दैट मीन्स 5 का ही चेंज होगा। प्लीज रिमेंबर इट, राइट? सो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। दैट मीन्स यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल चेंज होगा, किसमें? वेलोसिटी में इक्वल चेंज होगा, राइट? नाउ यू विल सी, बट अगर एक्सेलरेटेड मोशन होती क्या है, आई विल गिव यू एग्जांपल। आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं रोड पे, वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल ऑन रोड इज नॉट यूनिफॉर्म। व्हाई? समटाइम्स वी हैव टू अप्लाई ब्रेक, समटाइम अकॉर्डिंग टू रोड वी हैव टू सी दैट स्पीड हैव टू डिक्रीज और इंक्रीज, सो वेलोसिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? सो इट्स अ एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ यू विल सी, yes, so next is, if velocity is change, if change in velocity in each unit of time is constant, that means जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पहले 5 मिनट्स में 30 to 35 का चेंज आ रहा है, दैट मीन्स 5 का चेंज आ रहा है, नेक्स्ट में भी 5 का ही चेंज आएगा, राइट? बट इट्स नॉट मीन कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। आप बोलोगे कि 5 पहले थी, 5 वो, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। प्लीज रिमेंबर, change in velocity should be constant but velocity should not be constant, right? 30 to 35. So now you will see, that means अगर velocity change हो रही है but equal change हो रही है, that is the case of constant acceleration you can say, or uniform एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल चेंज हो रही है वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मीन्स चेंज हो रही है, नॉट कांस्टेंट लाइक यूनिफॉर्म मोशन, राइट? सो कांस्टेंट चेंज हो रहा है। नाउ यू विल सी, सेकेंड इज, अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है, right? So when change in velocity with each unit of time is not constant, that means that that object is said to be moving with a variable acceleration, or you can say non-uniformly accelerated motion. For example, vehicle speed कभी कभी slow हो जाती है, हमें slow करनी पड़ती है, right? According to road that we see. So कभी स्पीड इंक्रीज कभी डिक्रीज, दैट मीन्स हर 5 मिनट बाद सेम स्पीड नहीं मिलेगी आपको, तो चेंज इक्वल नहीं है, राइट? सो व्हेन चेंज इन द वेलोसिटी विद टाइम इज नॉट अ सेम, नॉट अ कांस्टेंट, दैट इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और यू कैन से वेरिएबल एक्सेलरेशन, राइट? ओके, नेक्स्ट इज सम टर्म्स टू अंडरस्टैंड द एक्सेलरेटेड मोशन. सो इट इज टर्म्स. Terms, right? So terms to understand, to describe the uniformly accelerated motion. If you find anything not visible, I will send you PDF, you can see from it, right? But video is just for understanding. Now you will see average speed. It is defined as the ratio of path length, जितना हम distance cover करते हैं, as we have done in the previous lecture, right? So it is defined as the ratio of path length to the time taken by an object to cover that path. So as you know, speed में direction का concept नहीं होता, तो you can say it's a scalar quantity, and average means, why you can say average? See it, एवरेज का मतलब मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखो यूनिफॉर्म मोशन में हम एवरेज नहीं बोला, एक्सेलरेटेड मोशन में ही एवरेज क्यों बोला? सो दिस इज ड्यू टू द रीजन वाई, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हर एक टाइम के बाद सेम नहीं होता, स्पीड चेंज भी सेम नहीं होगा, राइट? सो स्पीड फर्स्ट अगर 35 है, नेक्स्ट 5 मिनट्स में 45 है, नेक्स्ट 5 मिनट्स में 50 भी हो सकता है, नॉट 55 एक्जैक्टली, राइट? सो व्हेन यू वांट टू फाइंड द एवरेज स्पीड, यू हैव टू ऐड ऑल दिस 3 डिवाइड बाय 3. एज यू नो, दिस इज अ बेसिक हाउ टू फाइंड द एवरेज. सो दैट्स व्हाई इट्स अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, और यू कैन से एक्सेलरेटेड मोशन, देन you have to take a average speed. So that's why average word is added here, right? Now similarly, average velocity just changes in the place of displacement. Here it's a distance and the direction concept, so it is a vector quantity, right? Now what we have to see is acceleration. As you see, the name already said you what is the meaning of acceleration. You will see
what is accelerated motion? That means कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है ना. एक्सेलरेटेड मतलब चेंज. सो एक्सेलरेशन मतलब क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट? क्योंकि अब वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी इट्स नॉट बी uniform. So what is acceleration? Change in velocity divided by change in time. So v prime minus v divided by t prime minus t, that is the velocity change. So that when change in velocity we see with respect to time, that will give us you the acceleration. Please, it's a new term. What is acceleration? क्योंकि देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होगी वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते जा रही है वैसे हम उनकी रेशियोज देखते जा रहे हैं. सो ऑल्सो अगर वेलोसिटी आपको पता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन विल बी ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? सो as you know, velocity may be positive because displacement may be positive, velocity may be negative also because displacement will also be negative, और जीरो भी हो सकती है. सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी से बना है सो दैट मीन्स आपकी एक्सेलरेशन भी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, राइट? तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है हम उसको बोलते हैं डेक्लरेशन. डी मतलब डिक्रीज, राइट? सो अगर आपका फॉर एग्जांपल जब हम कार मूव कर रहे हैं हमने एकदम से ब्रेक अप्लाई की तो स्पीड डिक्रीज, दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल डिक्रीज. दैट इज deceleration, not acceleration, right? So in that case acceleration will be negative because velocity decrease हुई है, right? So that I have written, sometime velocity is decreasing steadily, so then object have negative acceleration, or you can say here negative acceleration sometime called as retardation or deceleration. It's retardation or deceleration, that is negative acceleration sometimes called as retardation or deceleration. Now what are the units of acceleration? Velocity upon time is the unit, right? So acceleration velocity की units meter per second and time के second. So जब आप ऊपर लेके जाएंगे इसको it will become meter per second square, right? So what is the basic physical meaning of acceleration if you want to know? That is how speed will change, राइट? हाउ मच, कितना चेंज हो रहा है स्पीड में. सो फिजिकल मीनिंग क्या होगा? हाउ मच इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज इन ईच यूनिट ऑफ टाइम. हर एक टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है. नाउ we will do the one numerical. A body travels from A to B at 40 मीटर पर सेकेंड. एक बॉडी A से B तक जा रही है कितने स्पीड से? 40 मीटर पर सेकेंड से. फिर वापस आ रही है उसी पाथ पे B to A. दैट मीन्स डिस्टेंस तो उसने सेम कवर किया. अगर D से डिस्टेंस कवर करके जाएगी वापस भी D ही कवर करके आएगी, राइट? बट वो आएगी कितनी स्पीड पे? बट स्पीड बढ़ गई उसकी नाउ 60 मीटर पर सेकेंड. सो हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी, राइट? इट्स नॉट सेम थिंग्स, प्लीज अंडरस्टैंड इट. स्पीड में डिस्टेंस लेते हैं, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं. उसमें डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं आता, वेलोसिटी में डायरेक्शन का कंसेप्ट आएगा, राइट? नाउ यू विल सी when a body move from A to B, velocity is 40 meter per second, but when body moves from B to A, velocity will be 60 meter per second. So you will see A to B में distance same है, B to A में भी distance same है, right? So that will be the distance is D, राइट? सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम. आप अगर ले लेते हैं कि A टू B पर टोटल टाइम क्या होगा? A से B जाने तक का प्लस B टू A में वापस भी आने का. डिस्टेंस सेम है, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो अब आपको स्पीड दे रखी है, दैट इज 40 इन द केस ऑफ फर्स्ट एंड 60 इन द केस ऑफ सेकंड. डिस्टेंस सेम है, आपको टाइम निकालना है, इसलिए मैं टाइम को उधर लेके और डिस्टेंस को नीचे, स्पीड को नीचे. सो टाइम अगर इस साइड पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस अपॉन 40. जब A से B जा रहा है तो सेकंड में भी डिस्टेंस तो सेम ही होने वाला है क्योंकि पाथ सेम है A टू B और B टू A का, बट स्पीड विल चेंज, दैट इज 60. नाउ यू विल सी एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस क्या आता है? पहले A टू B का D प्लस फिर B टू A का, इसमें डायरेक्शन नहीं लेंगे, प्लीज रिमेंबर प्लस ही करेंगे. सो D प्लस D इज 2D. ये हमने टोटल टाइम काउंट किया, अभी कैलकुलेट किया. सो जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज, यू विल सी D will cancel each other, you will left with take the LCM and solve the average speed, that will be 48 meter per second. But when you find the average velocity, that is change in displacement upon change in time,
व्हाट इज द एवरेज डिस्प्लेसमेंट? कुछ नहीं होगा. वाई? क्योंकि ए से बी गया सेम डिस्टेंस कवर करके, बी से ए गया सेम डिस्टेंस कवर करके. दैट मीन्स जब इसमें अब डायरेक्शन कंसेप्ट होगी, जितना गया उतना वापस. सो डी माइनस डी दैट इज जीरो. सो अगर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो तो नो मैटर व्हाट इज डिनोमिनेटर इट विल बी जीरो. सो एवरेज वेलोसिटी will be zero, but average speed will be 48 meter per second, right? Okay, so next topic is very important, very important, right? Please remember these relations while doing this numerical of this chapter. All you can say in further physics, these three formulas will be very useful too. That's right. Okay, now you will see in this lecture we will do derivation of these two relation, and third one we will do in next lecture. So first one is velocity time relation and second one is position time relation. But please remember it is from uniformly accelerated motion, right? क्योंकि यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड का डिफरेंस है. मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्मली में वेलोसिटी चेंज होगी बट सेम चेंज होगा, राइट? कांस्टेंट नहीं रहेगी, right? But non uniform में velocity change equal नहीं होगा. So these three formulas are for uniform accelerated motion. So velocity time relation and position time relation से हम find out करेंगे, right? And third one we will do later. Let's start off first. हम इसमें क्या करेंगे, वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है वो डिराइव करेंगे. सेकेंड में पोजीशन और टाइम में क्या रिलेशन होता है वो डिराइव करेंगे. फर्स्ट वन इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. सिंस यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन वेलोसिटी चेंज इक्वल होता है, एवरी टाइम वेलोसिटी चेंज विल बी इक्वल, सो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट. सिमिलर जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन में किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि उसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही थी. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था. तो जब चेंज इन डिस्टेंस जीरो है तो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. जब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है तो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, राइट? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट? जब दोनों में चेंज ही नहीं होगा, दोनों वेलोसिटीज में चेंज ही नहीं होगा तो देन एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, राइट? ओके, सो दिस वी हैव टू डिराइव v is equal to u plus a t. यहाँ पे अगर मैं t को, दिस इज इनिशियल टाइम, राइट? तो मैं इनिशियल टाइम को जीरो भी ले सकती हूँ. देन यू हैव टू ड्राइव v is equal to u a t. अगर आप इनिशियल टाइम को t लेते हो तो t प्राइम माइनस t आना चाहिए, राइट? दिस v प्राइम इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a here is the acceleration. So let's see, मैंने assume कर लिया initially velocity will be u, final velocity will be v, initial time will be t, final time will be t, normal t, and initial time will be 0. Now we will see what is the definition of acceleration. As you see, change in velocity upon change in time. So velocity change क्या होगा? Final velocity minus initial, right? Final is v, initial is u, divide by time, final time t minus initial time 0. Just multiply it, you will get it. v is equal to u plus at. This is very easy, right? This is not so tough. v is equal to u plus at. But please remember this formula, you have to use this formula in numerical if any two quantities given, and third one you have to find, and then you have to apply this formula according to given things. So अब ये तो हुआ t अगर जीरो है इनिशियल टाइम. अगर t इनिशियल क्या होता, t प्राइम होता फाइनल और इनिशियल t होता, तो यहाँ पे क्या आप चेंज करते, t प्राइम माइनस t कर देते, तो देन यू विल गेट दिस रिलेशन v is equal to u plus a t prime minus t. So it is the relation between velocity and the time, right? Now the second one is position time relation. It's the second one. So position means distance or displacement, time position time. तो ये आपको प्रूव करना है. s is equal to ut plus half at square. Now this is not you can say lengthy, but it's difficult than earlier, right? So when you watch this video, please do with your hand so that you will understand it more. Now you will see. मैंने assume किया कि v will be the velocity, x will be the displacement of body at time t. किसी initial time पे t v velocity है और कुछ अगले टाइम पे v प्राइम हो गई velocity, डिस्टेंस भी चेंज हो गया, that is x प्राइम, और t टाइम प्राइम हो गया. ठीक है. नाउ अब now you will see what is average velocity. हमें पता है change in displacement upon change in time, so x prime minus x divided by t prime minus t. Just cross multiply it, you will get x prime minus x, that is equal to v average t prime minus t. But as I have told you earlier, how you will find the average of something. अगर two quantity है तो उनको add करिए, divide by 2, अगर 3 है add करिए, divide by 3. So
इनिशियल कितनी थी v, फाइनल कितनी v प्राइम, तो एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो v प्लस v प्राइम डिवाइड बाई 2. जस्ट पुट डाउन दिस v एवरेज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट वन, राइट. सो व्हाट यू विल गेट, x prime minus x that is equal to v prime plus v divide by 2, और ये t prime minus t as it is, right. Now apply the formula of acceleration. What is acceleration? Change in velocity divided by change in time. v prime minus v divided by time, that is t prime minus t, right. Cross multiplied, find the value of just v prime, this final velocity, राइट. तो जब आप v प्राइम की वैल्यू निकालोगे ये प्लस v हो जाएगा इस साइड पे जाके, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया. अब v प्राइम की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में पुट करिए. सो यू विल गेट x प्राइम माइनस x, हाफ पहले ही था एज यू सी हियर, हाफ v एज इट इज v बाई 2, और v प्राइम की जगह मैंने ये पुट कर दिया v प्लस a t प्राइम माइनस t, ये वाला, राइट, दिस वन. और t प्राइम माइनस t भी ऑलरेडी था साथ में, दैट इज एज इट इज, राइट. नाउ यू विल सी v प्लस v इज 2v. मैंने अब इन दो टर्म्स को अलग कर लिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, राइट. फिर ये हाफ इस चीज के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, तो जस्ट आई हैव डन व्हाट आई हैव टेल यू, दिस t प्राइम मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म एंड ऑल्सो विद दिस टर्म, दिस फर्स्ट वन, मैंने इसको एक टर्म में एज्यूम किया, राइट. सो नाउ यू विल सी v प्लस v इज 2v, 2v बाई 2 इज 2 कैंसिल, यू विल लेफ्ट विद v और t प्राइम माइनस t इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, राइट. नाउ यू विल सी when you multiply this t prime minus t with this term, you will half a t prime minus t whole square, right. Okay, so now you will see v t prime minus t plus half, तो हमारे पास क्या बचा, v t प्राइम माइनस t प्लस हाफ t प्राइम माइनस t का होल स्क्वायर, राइट. तो मैंने आपको पहले भी बताया था फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को मैं नेट डिस्प्लेसमेंट s से लिख सकती हूँ. सो आई विल पुट इट s, x प्राइम माइनस x इज इक्वल टू s, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो एट t इक्वल टू 0 दैट इज इनिशियल टाइम एंड v इज द, अब मैंने अज्यूम कर लिया कि मैं फाइनल वेलोसिटी को v ही लिखने वाली हूँ, बट और इनिशियल वेलोसिटी को u, बट नाउ यू विल सी जो v प्राइम थी वो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी, उसको मैंने क्या पुट कर दिया था, इन फॉर्म ऑफ v पुट किया था, राइट. यहाँ पे मैंने v प्राइम को चेंज कर दिया था ना v में. सो दैट मीन्स अब हमारे पास जो ये v था ये इनिशियल टाइम वाला था, तो मैं इसको u लिख सकती हूँ, राइट. सो इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहाँ पे t पुट कर दिया, और जैसे मैंने बताया ये हमारे हाथ में है कि हम इनिशियल टाइम को क्या अज्यूम करेंगे. अगर मैं अज्यूम करती हूँ नॉर्मल डेरिवेशन में हम इनिशियल टाइम को 0 लेके चलते हैं फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इजी, राइट. सो t को आप 0 पुट करोगे, यहाँ पे भी t, क्योंकि ये इनिशियल टाइम है, और फाइनल टाइम को t प्राइम की जगह t कर दोगे, राइट. तो इनिशियल टाइम को 0 कर दिया, और जो फाइनल इनिशियल पहले था t था उसको फाइनल कर दिया, राइट. सो t इक्वल टू 0 पुट करोगे क्योंकि इनिशियल टाइम, t प्राइम की जगह t, v की जगह u. सो यू विल गेट योर एक्सप्रेशन, और x प्राइम माइनस x की जगह नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज s, राइट. सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपका फॉर्मूला आ जाएगा, दैट मीन्स हेंस प्रूफ. आई विल रिपीट दिस डेरिवेशन. फर्स्ट यू विल सी, सबसे पहले हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, x प्राइम माइनस x डिवाइड बाई t प्राइम माइनस t. फाइंड कर लो x प्राइम माइनस x, मेक इट एज इक्वेशन 1, राइट. नाउ v एवरेज को हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ठीक है. तो मैंने v एवरेज की वैल्यू इसमें पुट कर दी, यहाँ तक क्लियर. नाउ जब आप पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. नाउ आई विल फाइंड आउट दिस v प्राइम वैल्यू, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकती हूँ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, v प्राइम माइनस v डिवाइड बाय t प्राइम माइनस t. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v प्राइम की वैल्यू निकालो. जब आपने v प्राइम की वैल्यू निकाल ली, जस्ट पुट डाउन दिस v prime value in this expression, right. So when you will put the value of v prime in the third expression, you will get this term. Solve it, cross multiply the terms, this t prime को पहले इसके साथ फिर फर्स्ट वाली के साथ, right. तो पहले मैंने इसको एक टर्म माना और सेकंड इसको, जस्ट मल्टीप्लाई 1 by 1, you will get this expression. Now I assume कि मेरा इनिशियल टाइम t 0 था और इनिशियल वेलोसिटी u थी, राइट. और ये मेरी नेट डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसको मैंने s से रिप्रेजेंट किया. सो आई विल पुट हियर s
इनिशियल वेलोसिटी की जगह u, फाइनल वेलोसिटी की जगह t, इनिशियल को t टाइम को 0, so you will get your expression that is ut plus half at square. That is the expression for your initial velocity u, right? So it is the relation between the position and the time, right? So first that you do, that is the velocity relation with time, and it is the distance with time or position with time, right? The third numerical relation we will do later in the next lecture. I hope you will understand this, guys. If you find any difficulty, any type of query, you can ask me, right? Or you can contact me. One more thing, if you want to find any difficulty in your numericals or something else, you can send me question. I will solve the question, okay? And one more thing, you can follow me on Insta, right? I will provide you the link for my Insta, official Instagram. Then you will follow me on the Insta, so that if you find any difficulty, you can ask me there, right? The Instagram link I will give you in the description, and the PDF of this lecture you can also download from the description. Now if you like the video, please share as much as you can, comment, right, like it, and अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you will get the notifications for upcoming lectures, right? Okay, thank you so much. Goodbye.